خداوند آپ سب کو برکت دے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کی، جس نے آج کا دن ہمیں زمین پر پھر سے بخشا تاکہ ہم اپنی زندگیوں سے اس کو جلال دے سکیں اور ہیکل کے اندر آ کر اس کی کیا کر سکیں جی، عبادت کر سکیں، اس کی شکر گزاری کر سکیں، اس کے ساتھ ہم بغل گیر ہو سکیں تاکہ خدا ہماری زندگیوں کے اندر عزت و جلال پائے. میں چاہوں گی ذرا آپ کھڑی ہو جائیں ادھر آئیں. ایک فرائیڈے بڑا اچھا مجھے یہ ایگزامپل لگی، ادھر آ کے کھڑی ہو جائیں، کہ خدا ہمارے ساتھ کیسی ملاقات چاہتا ہے. میری طرف دیکھیں، یہ خدا ہے اور یہ میں ہوں، اور یہاں بیٹھی ہر ایک ضد کی اس بات پر ذرا غور کرے کہ خدا میرے ساتھ کیسی ملاقات چاہتا ہے. کیا خدا اتنے وقفے سے ہمیں ملنا چاہتا ہے؟ خدا اتنا گیپ چاہتا ہے میرے اور اس کے درمیان میں رہے؟ بولو ذرا، کیا خدا چاہتا ہے اتنا گیپ رہے؟ کیا خدا چاہتا ہے اتنا گیپ رہے؟ کیا خدا چاہتا ہے کہ میں اس کے سامنے آ جاؤں اور اپنا رخ ایسے رکھوں؟ بھائی خدا چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بغل گیر ہو جاؤں. خدا ہمارے ساتھ ایسی رفاقت چاہتا ہے کہ وہ ہم میں ایک ہو جائے اور اس کا روح ہم میں سما جائے اور ہم زمین پر رہتے ہوئے اس کے گواہ اور اس کی بیٹا اور بیٹے ٹھہر سکیں. جڑا کام ہوتا ہے نا ہیلو ہائی صرف اسی رکھی ہے، اس سے کام. میں ادھر سیل میں تھی، انکل جی بول رہے تھے کہ کلام اٹھایا جانا ہے، سب کچھ اٹھایا جائے. اگر آپ نے خدا کے کلمے کو اپنے اندر رکھ لیا، دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. دنیا کے حالات آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کیونکہ خدا کا کلمہ جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، جو مجسم ہوا، زمین پر آیا، مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن میری اور آپ کی فتح کے لیے وہ فتح کے ساتھ جی سکا تاکہ ہم اس میں رہتے ہوئے اچھی زندگی کو گزاریں اور فتوحات کی زندگی کو گزاریں. یہ فتح کوئی چھوٹی تو نہیں ہے. اس کی فتح بہت بڑی ہے. وہ مر گیا ہے، وہ دفن ہوا ہے اور تیسرے دن اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے تاکہ میرے اور آپ کے درمیان میں رہے اور بسے. آمین. گزشتہ 1 ویک سے ہم کافی ٹف شیڈیول کے اندر جا رہے تھے اور گزری رات بھی ہم ایک علاقہ کے اندر تھے، کیونکہ وہ علاقہ کافی بیکورڈ تھا، مگر وہاں پر خدا نے ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کیا اور بہت ساری زندگیوں تک ہم نے خدا کی زندہ آواز کو پہنچایا. یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، بہت ساری قربانیاں ہم کہتے تو ہیں خدا میں تیرے لیے قربان ہونے کے لیے بھی تیار ہوں، میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. گزری رات ہم نے کافی زیادہ پرابلمز کو دیکھا، جس میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا، بہت ساری دیر بھی ہو گئی، کچھ ہمیں واک کر کے بھی جانا پڑا اور فزیکلی کافی زیادہ ہمیں اس کام کے لیے قربانی دینی پڑی. مگر میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتی ہوں گواہی کے طور پر کہ وہاں پر جو کلام ہم دے کر آئے، کلام کی سچائیاں سنا کر آئے، ان کے لیے برکتوں کے دروازے ہم کھول کر آئے. کیونکہ وہاں پر جو چرچ تھا تقریباً گزشتہ 7 سالوں سے وہ چرچ اس جگہ پر بن رہا تھا، ڈیولپ ہو رہا تھا، اور خداوند کے فضل سے وہ ایک خوبصورت بلڈنگ میں انہوں نے بنایا. اور 7 سالہ جو برکت تھی اس کے بارے میں خدا نے وہاں پر بھید کھولے کہ خدا نے جب آسمان اور زمین کو بنایا تو اس نے 6 دنوں کے اندر اس کام کو کمپلیٹ کیا، مگر 7ویں دن کو خدا نے کیا بخشی تھی؟ اس نے برکت بخش دی تھی. اور اسی طرح سے یہودیوں کے لیے قانون بھی تھا کہ جب وہ کاشتکاری کرتے تھے، وہ کوئی بھی کام کرتے تھے، تو خدا ان کو یہ حکم دیتا تھا کہ 6 سال تم نے بہت محنت کرنی ہے، مگر 7ویں سال کو خدا نے جوبلی کا سال ٹھہرایا ہے. اور وہ جوبلی کا سال جو تھا وہ نرسنگے کے ساتھ اس
उसका आगाज किया जाता था और वो उनके लिए आज़ादी और रहाई और मखलसी का ऐलान करता था। आमीन। और ये कलाम खुदा ने उस इलाके के लिए बोला, उस मिनिस्ट्री के लिए बोला, जिसमें वहाँ के जो खादिम थे, जो खिदमत गुजार थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस कलाम के वसीला से कुव्वत पाई। मगर इसको पेश करने से पहले हमने काफ़ी मुश्किल हालात को देखा, मगर हम शुक्रगुजारी करते हैं, हम भी पौलुस की तरह कहते हैं, दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा करने नहीं पाएगी। आमीन, आमीन। ये कहना बड़ा आसान है। मैं किसी को भी कहूँ आयत बोल देगा फटाफट, सारे आयतां रटियां ने, मगर इस आयत को लेकर चलना, इसमें से गुजरना, अपनी उस बरकत को जो खुदा ने आपकी जिंदगियों में रखी है उसको डिलीवर करना, उसके लिए आपको कुर्बानी देना पड़ती है। इसलिए मेरी टीम के लोग सुने, आगे हालात टफ हो जाएंगे, मगर हमने खुदा के काम को नहीं रोकना, हमने उसकी मुनादी को लेकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और ये मैं किसी पर एतराज नहीं कर रही, गुजरी रात हमने डायरेक्टली, शैतान आकर खड़ा तो नहीं हुआ, मगर एक खादम में से आकर वो होकर बोला, और उसके बोलने को भी खुदा ने उसी जगह पर उसके मुंह को बंद कर दिया, क्योंकि उसने कहा जो कोई मेरे खादम को छेड़ता है वो मेरी आंख की पुतली को, वहां पर उसको इंसल्ट देखना पड़ी। मगर खुदा ने हमें उस जगह पर इज्जत दी, क्योंकि हम सच्चाई के साथ खड़े थे, और इस इलाके के अंदर खुदा ने हमें अपने नाम के लिए इस्तेमाल किया, और बहुत सारी जिंदगियों के अंदर खुदा ने काम किया है। और ये आप सबकी दुआओं से है, जो मस्जिदों पर आपने दुआएं की, उसके वसीला से खुदा ने उस इलाके के अंदर जबरदस्त काम किया। और गुजरी रात ही उन्होंने हमें नेक्स्ट मीटिंग का भी कहा, जो एक बड़े लेवल पर होगी, और उस इलाके के अंदर मैं ईमान रखती हूँ खुदा बहुत सारी जिंदगियों, खानदानों के अंदर जबरदस्त काम करेगा। आमीन। इसलिए कलीसिया जाग जाए, क्योंकि हमें आपकी दुआओं की, और पिछला वीक हमारा बहुत ज्यादा टाइट गुजरा, परसों मीटिंग, कल मीटिंग, उससे पहले मीटिंग, और उन सारी मीटिंग्स के अंदर खुदा ने बहुत ज़्यादा लोगों की जिंदगियों के अंदर काम किया है। और ये गवाही आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि आपने जो दुआएं की हैं उसके वसीला से खुदा ने बहुत सारी जिंदगियों को अपनी खिदमत के लिए चुना है, बीमारों को शिफा दी है, और जो बहनें बांझ थी उनके बंद रहम को भी खुदा ने खोला और अपने फजल को जारी किया है। आइए हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे। हमारे कलाम का टाइटल क्या है जी? ऊंची बोलो, बोलो, अच्छा बोल रहे हो। बोलने से पहले कुछ, बोलने से पहले कुछ। कितने लोग हैं जो पिछले वीक आए थे यहाँ पर? हमने किसके बारे में सीखा था? हैं? हैं? हननिया, और कोई अमल में किया कि नहीं? कई लोग कहते ने बाजी बड़ा सख्त कलाम सी, मैं कहा थानू लोड़ भी इतनी सी, मैनू भी लोड़ सी। आमीन। क्योंकि हमने हननिया और सफीरा के बारे में सीखा था कि हननिया के नाम का मतलब क्या था। थोड़ी सी रिवीजन भी जरूरी है ना, पता चले तुसी याद भी रखते हो कि नहीं। असी इत्थे आंसू बहाते रहने, घंटों घंटे दुआ च रहने, कि खुदावंद अपनी बेटियां बेटियां की जिंदगी च काम करे। ते कोई दस सकता हननिया के नाम का मतलब की सी? हाँ जी जी, यहोवा। और सफीरा के नाम का क्या मतलब था? खूबसूरती। तो मैंने बताया था कि जब उन्होंने झूठ बोला तो उसके नाम का मतलब उसको बचा, सफीरा की खूबसूरती उसको बचा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला खुदा की हजूरी में? झूठ बोला। तो इसीलिए कलाम का टाइटल है बोलने से पहले कुछ, ते झूठ, झूठ। कोशिश करो कि झूठ नू आस्ता 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 छड़ दो। अगर आप बहुत ज्यादा बोलने वाले हैं तो रूटीन में थोड़ी कमी लाएं, और कमी के साथ साथ उसको छोड़ें, सच्चाई पर कायम हो। और सच्चाई आपको, ये बहुत सारे बंधनों और जुओं से आपको आजाद कर देगी।
क्योंकि आपके बोलने के अंदर खुदा ने कुव्वत रखी है। आपके बोलने के अंदर, आपके लफ्जों के अंदर खुदा ने कुव्वत रखी है। जो कुछ आप बोलते हैं वो आपकी जिंदगी के अंदर होता है। और आज फिर हम जुबान के बारे में सीखेंगे, और इसका हवाला है वो निकाल ले चैप्टर मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब, और इसी के साथ याकूब का खत भी निकाल ले उसका 3 बाब। और आज फिर हम जुबान के ताल्लुक से ही कुछ खुदा की तालीमी बातों को जो कलाम मुकद्दस के अंदर हैं, अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी सिखलाई के लिए, अपनी तरबियत और नसीहत के लिए सीखेंगे। मरकजी आयत पढ़ने में रहनुमाई कर दे कोई भी। खुदा के कलाम में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो नकमी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पर हमने देखा कि मत्ती रसूल कहते हैं कि और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो नकमी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका क्या होगा जी। हर संडे हिसाब किताब जरा बराबर रखना चाहिए है। हननिया और सफीरा ने झूठ बोला और उन्होंने अपना खाता, झूठ की वजह से सारा खाता ही गोल हो गया, और जमीन तो ही चुके गए, ते दुनिया के सारे मामले ही उन्होंने जिंदगी चुकी हो गए, खत्म हो गए। क्योंकि खुदा ने कहा है कि जो नकम्मी बात तुम करोगे वो तुम अदालत में, चाहे तुम कोई भी हो, अपनी जुबान का इस्तेमाल क्या करो, ठीक करो, दुरुस्त करो। क्योंकि जुबान जो है ये हमारे बदन में एक छोटा सा उस्व है, पूरी बॉडी के अंदर सबसे छोटा उस्व है, मगर ये पूरे जंगल को क्या लगा देती। अक्सर कहते ने तू तो मैनू गल करके की कर दिता, ये जो गल करता है तो मैनू अग लग जाती है, क्योंकि दी जुबान ही बड़ी गंदी है। कई लोग तो ऐसे हैं वो लफ्जों से मार देते हैं, तो बाद जो मीसने बन के कहते ने असी की आखे असी कोई चंड तफा ते नहीं मारे हैं। भाई तू गल्लां नाल जी मार दिता, चंड मारन की लोड़ रही। क्योंकि यहाँ पर याकूब के खत में लिखा है, वो कहते हैं ये बदन के अंदर जो जुबान है ये एक छोटा सा उस्व है, लेकिन ये सारे जंगल को क्या लगा देती है। ते अक्सर लोग गल्लां ही ऐसियां अजीब करते ने, गल्लां कर करके अगले दा दिमाग घुमा देंदे ने, मीटर शॉर्ट कर देंदे ने, ते कोई बैठा खलोता होए तो वेख के हंस ही लैन ते अगला शॉर्ट हो जाता है। वो पहले ज़हनी तौर पे ओदियां गल्लां दी वजह तो इतना जख्मी होया हुंदा है। कुछ लोग इतना दूसरों को अपने लफ्जों से जख्मी कर देते हैं कि किसी के सामने वो अच्छा भी बोल रहे हो तो दूसरा कहना उन्होंने तो कुछ नहीं कहा आपको, उन्हें ये नहीं पता होता कि पिछों इन्हें जीना हराम किया है। उन्हें ये नहीं पता होता कि पिछों जनानियां ने मेहने मारते हैं। कई तो ऐसे होंगे ने सौतना वाले मेहने मारते हैं, तेरे पेकिया ने यह कर दिता, फलाणिया ने यह कर दिता। हो सकता है कोई उन्होंने बरात से कोई वाकया होया है तो पूरी जिंदगी 50 साल बाद भी कहते ने मैं जज लैके गया था तो तेरे घर ले कर दिता है। औरतों को गल्लां कर करके मार देंगे ने, ते कई औरतें ऐसियां होंदियां ने वो कहते सानू जेवर पाया ला लिया है। साडे वलीमे ते सानू चज नाल रोटी भी नहीं पूछी गई, सारी दुनिया रोटी खा गई, पर सानू उनके किस्से ही खत्म नहीं होते, उनकी वो बातें ही खत्म नहीं होती। अगर किसी के पास रुपए पैसे की कमी है, वो जरा गरीब है और नहीं कुछ कर सकिया, असि रिश्तेदारों को गल्लां कर करके मार देंगे, साड़ी इन्नी भाजी सी तो इन्नी नहीं दिती। ये सारा कुछ कहां से हो रहा है? ये जुबान से हो रहा है। बाज़ दफा आपकी जुबान से किसी की रूह रंजीदा हो जाती है, बाज़ दफा आपकी बातों से किसी की रूह मरना शुरू हो जाती है, बाज़ दफा आपकी बातों से कोई गमज़दा हो जाता है, उसका दिल खून के आंसू रो रहा होता है और हम कहते हैं सीधे करके टका के ओदी की एदी अदालत होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर वो कहता है जो नकम्मी बात जो लोग भी करेंगे, इतने किसी एक का नाम नहीं लिखा कि पास्टर करेंगे या कलीसिया करेगी या कोई कौम करेगी या किसी गैर मजहब का
बंदा करेगा, बल्कि जमीन पर रहते हुए जो भी इंसान हैकल में बैठा हुआ, दुनिया में रहते हुए निकम्मी बातें अपने मुंह से निकालेगा, खुदा उसका हिसाब। कुछ दिन पहले हम यहाँ पर प्रेयर कर रहे थे और बैठे बैठे एक बच्चे ने एक रोया देखी। उसने कहा व्हाइट फूल गिर रहे हैं और उस व्हाइट फूलों के अंदर एक किताब है जिसके अंदर उसका नाम लिखा हो, और वो व्हाइट किताब है। उसने मुझे कहा बाजी मैंने ये देखा, इसका मतलब क्या है? मैं कहा ਇਹਦਾ मतलब है कि तेरी जिंदगी की जड़ी किताब है एक फरिश्ते के हाथ च, और तू जो कुछ बोल रहा है वो ਇਹਦੇ ते है। अगर तू अच्छा बोल रहा है तो वो भी लिखिया, अगर तू गाली गलोच दे रहा है तो वो भी लिखिया, अगर तू शेखी मार रहा है तो वो भी लिखा, अगर तू झूठ बोल रहा है, ऐप जो ही कर रहा है, तू दुनिया के अंदर रहते हुए कुछ भी कर रहा है, वो सब कुछ इसमें लिखा जा रहा है, और अदालत के दिन उसका हिसाब खुदा तुझसे। क्योंकि यहाँ पर वो कहते हैं जो नकम्मी बात तुम अपनी जुबान से निकालोगे उसके लिए तुम्हें अदालत में खड़ा होना। वो झूठ भी हो सकता है, वो गाली गलोच भी हो सकता है, ते कई गाने बड़े गाते हैं, वो कहते हैं बस हुण जुबान ते चढ़िया दे, हर वेले शैतान नूं जुबान ते चढ़ाई रखते हैं, और कहते हैं मैं तो बड़ी कोशिश की है कि मैं गाने छड्ड देवां पर मेरे कोलों हले फिर ਇਹਦਾ भी हिसाब दे देते हैं। हाँ जरा निकालिएगा याकूब का खत, उसका 3 बाब। यहाँ पर देखेंगे जुबान के ताल्लुक से बड़ी खूबसूरत वजाहत खुदा के बंदा ने की। याकूब का खत 3 बाब, उसकी 2 आयत से जरा पढ़ दें, 2 आयत से लेकर 5 आयत तक जल्दी से जरा पढ़ दें। यहाँ पर सुनिएगा, और बोलने से पहले कुछ क्या करना है, ख्याल करना है। जी खुदावंद के कलाम में लिखा है, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं, कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। ओ रुकिएगा, कामिल शख्स कौन है? जरा ऊंची बोलो। जो बातों में खता, कामिल शख्स वो है जो बहुत कम बोले और उतना बोले जितना। ए नहीं गल 1 मिनट दी तो 10 मिनट पे लै जाओ, घूम घुमा के फिर उठे। और कई लोग मुझे कहते हैं हमने छोटी सी बात करनी है, और छोटी जी गल भी अद्धे घंटे में चली जाती है, और जिथों शुरू होंदी है फिर आके उत्थे खत्म होंदी है, और फिर वही गल 1 तो लैके 100 तक जाते हैं, फिर 99 तो वापस मुड़ जाती है, फिर 1 तो शुरू कर लेते हैं। जी आगे जरा पढ़िएगा। वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। कौन? जो अपनी जुबान को क्या करता है, काबू में रख सकता है, वो फिर अपनी पूरी बॉडी को भी क्या कर सकता है। ते जिदे कंट्रोल दे विच जुबान ही ओदे कंट्रोल च नहीं, ते ओने दुनिया दी बाकी चीज़ां नूं कंट्रोल की करना है। आगे भी पढ़े जरा। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक निहायत छोटी सी पतवार के जरिए से माझी की मर्जी के मुताबिक माफिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। लफ्ज आ गया शेखी, क्या आ गया? जुबान की करती है, ये बड़ी शेखी मारती है। हुण कई वेख रहे ने अगे होना किते मेरे ते ना लग जाए। भाई जिथे जख्म होएगा उथे लगेगा नहीं, क्योंकि ये ठीक करने वाला है। आमीन। दुनिया में रहते हुए जो हमारी शख्सियत बिगड़ जाती हैं, दुनियादारी के कामों में रहते हुए, दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को चलाते हुए, खानदानों में अपनी जिंदगी को चलाते हुए, अगर हमारी जिंदगी के अंदर, एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर कोई जख्म लग जाए, कोई इसकी रूह खराब हो जाए, तो खुदा का कलाम जो है ये टेंशन का काम करता है। ये लगता है मगर लगने के बाद ये शिफा को जारी भी कर देता है और जख्म को ठीक भी कर देता है। आमीन आमीन। यहाँ पर वो
ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਗਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖੇ? ਉਹ ਕਲਾਮ ही है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਗਾਮ दे सकता है। आमीन। वो खुदा की वर्शिप ही है जो हमारी जुबान को कंट्रोल में रख सकती है। वो खुदा की कलाम की सच्चाइयां हैं जो हमारी जुबान को कंट्रोल में, ये हमें शेखी के लिए बोलने, ये हमें झूठ के लिए बोलने। जब हमारी जुबान पर खुदा का कलाम होगा, खुदा की मोहब्बत हमारी जुबान में से निकलने वाली होगी, तो फिर जो शैतान के काम है वो हमारी जुबान पर। यहां पर वो कहता है जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों को क्या कर देते हैं? ते कलाम च लिखिया ना हो घोड़ियां खचरा वांग, ते कुछ भी नहीं समझ। ते जड़े शेखी मारते ने ना बिल्कुल उन्हां दा ही हिसाब हुंदे एडे किन्ने ते दस दे एडा वड्डा है। ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈਪਸੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਹੋਏ। ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ के ऊपर से शेखी चीज़ां भावें किसी होर दियां होण ते बैठे हुए कहणगे साडियां ही नहीं। कल एक जगह से हम गुजर रहे और एक गाड़ी बड़ी खूबसूरत और उसमें बैठा हुआ जो ड्राइवर था, मैंने जब उसको देखा मुझे पता चल गया ये ड्राइवर ही है। मगर वो बंदा उस गड्डी दे विच इन्नी ठाठ नाल बैठा होया, कलरफुल उन्हें कपड़े पाए हुए, ते वो शो कर रहा सी कि गड्डी पर ओदी एक ही सी, ये शेखी थी। अपने अपने आप को बड़ा बड़ा दसन दिया है। मगर यहाँ पर वो कहते हैं जो जुबान को काबू में कर सकता है वो अपने बदन को भी काबू में। कभी कभी हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से कुछ बड़ा बता रहे होते हैं हम इतने, ते अक्सर नवा सूट पा लिए तो फिर तो थोड़ी और है, जे कोई महंगा पा लिए तो फिर साड़ी ठाठ बन होर हो जाती है। इत्थे वो कहता है कि अगर घोड़ियां खच्चरां वंगर तू हो गया और तेरी समझ खत्म हो गई और तेरे बोलने के अंदर तूने कोई इम्तियाज ना किया, तो तू अपनी बॉडी को भी कंट्रोल, क्योंकि जुबान तेरे कंट्रोल च नहीं, तो तेरे कंट्रोल च नहीं तो तेरे घर वालियां दे कंट्रोल च है। कई लोग बड़े जुबान दराज होते हैं, वो कहते हैं किसी ने कंट्रोल च नहीं, ते खुदा बाद चो फालज करके थत्ती कर देते हैं। वो कहता उन्होंने कंट्रोल च नहीं, पर पुत्र तू मेरे कंट्रोल च है, तू मेरे कंट्रोल च। जिन्हें बनाई है वो इनू थत्था भी कर सकता है, वो इनू बिल्कुल बंद भी कर सकता है। इसलिए बोलने तो पहले कुछ, बोलने से पहले कुछ, ये खुदा के कंट्रोल में है। अगर इस जुबान को आप खुदा के खात्मों के खिलाफ खोलते हैं, अगर आप इस जुबान को खुदा के खिलाफ खोलते हैं, अगर आप इस जुबान को अपने बड़े बुजुर्गों के सामने खोलते हैं, तो खुदा इसको बंद भी है, वो खिंच सकता जी। इल्जामां दे हाथ च नहीं, क्योंकि वो तुहानू बनाना वाला जी। आमीन। अगर गधे का, घोड़े का मालिक उसके मुंह के अंदर जुबान को बंद करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए उसके मुंह के अंदर लगाम दे सकता है, तो वो जो खालिक के कायनात है, जो तुझे और मुझे बनाने वाला है, वो भी हमें कंट्रोल करने के लिए फिर जमीन पर हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। इसलिए कहा बोलने से पहले कुछ। वो कहते हैं अगर घोड़े का मालिक उन्हें काबू कर सकता है और ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਫੇਰ ਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਫੇਰ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ खींचे तो ਉਹਨੂੰ ब्रेक लग जाती जी है। दोनों अगर वो ब्रेक खींच दे तो घोड़ा रुक जाता है, भागते हुए भी, चलते हुए भी। इसी तरह से अगर वो उसको कंट्रोल कर सकता है, तो रब्बुल अफ़वाज जो कुल जहानों को बनाने वाला है, जो इस बदन के हर एक अज़ा को बनाने वाला है, अगर ये जुबान उसके खिलाफ खुल रही है, अगर ये जुबान उसके कलाम के खिलाफ खुल रही है, अगर ये जुबान उसके कामों के खिलाफ खुल रही है, तो वो इसको भी खींचने की कुदरत और इख्तियार रखता है।
पूरी बॉडी को क्या कर लेता है, वो कंट्रोल कर लेता है। ते एक जड़ा फालतू सा बंदा हुंदा जे ना, वो मंजी ते लेटे आए तो कुछ कर सकता है? ते जे खुदा मंजी ते पा दे, जुबान बंद कर दे, तो फिर की होगा? फिर हम कुछ नहीं कर सकते। उसने हमें जुबान दी है ताकि हमारी जुबान पर उसकी निजात की रागनियां फूटती रहें। आमीन। उसने हमें जुबान दी है, उसने हमारी बॉडी के सारे सिस्टम को ठीक रखा है ताकि हम अपने बदन से, अपनी जुबान से, अपने होठों से, अपनी आंखों से, अपने बदन के हर एक अज़ा से हम उसको जलाल दें और जमीन पर रहते हुए खुदा के साथ एक रूह होकर जमीन पर उसके काम को सरअंजाम दे सकें। वो कहते हैं जहाज देखो कितने कितने बड़े होते हैं, जो समुद्रों के अंदर चलाए जाते हैं, जो पानियों के अंदर उतारे जाते हैं, जो आसमानों पर फिजाओं में घूम रहे होते हैं। खुदा ने इंसान के कंट्रोल के अंदर हर एक चीज को दिया है, इसलिए इंसान के इख्तियार के अंदर है कि वो हर एक चीज को कंट्रोल है कंट्रोल ए ना को मेरे को कंट्रोल नहीं होती। ये हम कर सकते हैं क्योंकि अगर बड़े बड़े जहाज लोग कंट्रोल करते हैं और एक शख्स उस स्टीयरिंग पर बैठकर उसको पानी के अंदर चला सकता है, उसको रोक सकता है, उसको कम स्पीड में लेके जा सकता है, उसको ज्यादा स्पीड में लेके जा सकता है और वो उसको अपनी मंजिल पर पहुंचा सकता है। इसी तरह से इंसान की जुबान भी है कि जो वक्त खुदा ने हमें जमीन पर दिया है, हम अपनी जुबान को कंट्रोल करके जिस मकाम तक खुदा चाहता है कि हम आसमानों पर जाकर उसके शायरी ठहर सके और इस जुबान से फरिश्तों के साथ मिलकर हर वक्त उसको कुदूस 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 कह सके, वो हमें इख्तियार देता है कि उसके रूह कुद्स के वसीला से हम अपनी जुबान को भी कंट्रोल करें और अपनी बॉडी के सारे सिस्टम को भी। आमीन। वो कहता है अगर जहाज कंट्रोल हो सकते हैं तो तुसी क्यों? अक्सर शोर बेचारे जिहड़े ने कहते ने मेरी बीवी मेरे कंट्रोल च, पाइए दी ते जुबान ही गज लंबी च किन्नी हुंदी सारियां दी एक जिन्नी है। कई ऐसे लोग होते हैं वो अपने बोलने से इतने अजीब लफ्ज बोलते हैं कि बैठने वाला जान जाता है कि ये बहुत क्या है, मुंहफट है। और इंसान की किताब में लिखा है कि तुम मुंहफट से कोई वास्ता। अक्सर लोग जिन लोगों की जुबान ठीक ना हो उनसे किनारे करते हैं, वो कहते ने ये कोलों ते दूर ही रहो थे क्योंकि इसकी जुबान बहुत है, इसकी जुबान बहुत खराब है, इसकी जुबान बड़ी गंदी, इसकी जुबान के अंदर दूसरे लिए हमेशा की ने सख्त लफ्ज ने। मगर वो कहते हैं अगर बड़े बड़े जहाज कंट्रोल में किए जा सकते हैं तो एक इंसान अपनी जुबान को भी कंट्रोल में, बोलने से पहले कुछ, बोलने से पहले कुछ। यहां पर हम सीखेंगे शेखी लफ्ज के बारे में। शेखी लफ्ज जो है ये शरारत का आलम भी है। एक कदी कदी असी दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾਣ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, दूसरिਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ, और दूजा बैठा बंदा दूसरा जिहड़ा हसन च आ जाता है। और जिहड़ी शेखी है ये साडी जुबान दे उत्ते जिहड़ा शरारत एक बड़ा वड्डा आलम है। अगर तुसी शेखी मारन आले हैं, जो तुसी है नहीं हो तुसी अगर वो दसन आले हो, वैसे तो इंसान की फितरत मैं एक शेर लिखिया और शेर इंज सी इंसान की फितरत के बारे में मैं भी शामिल हाँ कि अपनी जात में दोहरी शख्सियत के मालिक है हम, अपनी जात में दोहरी शख्सियत के मालिक है हम, फिर भी लोगों से कहते हैं बंदे खुदा के हैं। असी बंदे किते हैं? असी बंदे किते हैं? खुदा दे हैं, मगर दोहरी शख्सियत है। चर्च दे विच बैठे असी रास्तबाज, चर्च तो बाद असी की हैं? जरा सुनिएगा, चर्च के अंदर बैठे हुए हम खुदा की वर्शिप कर रहे हैं, हम खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। चर्च के अंदर बैठे हुए हम खुदा से अपने अपने घराने के लिए खुदा से क्या मांग रहे हैं जी? बरकत मांग रहे हैं। खुदावंद तू मेरे शौहर की जिंदगी में काम कर,
तू मेरी बीवी की जिंदगी में काम कर, और इसी जुबान से हम अपने खानदानों के लिए बरकत चाहते हैं। मगर चर्च से बाहर जब हम अपनी फैमिली के अंदर होते हैं तो जाके कहते खुदा इन्हू ते चौकी ले, खुदा भी परेशान हो जाता है। हुण ने जो चर्च च मंगया मैं वो करा, या जो एक घर कह नहीं वो कर है। वो कहता है एक ही चश्मा से दो तरह का पानी। अगर आप यहाँ बरकत चाह रहे हैं, प्रॉब्लम्स हर लाइफ के अंदर होती है, हर खानदान के अंदर होती है। ये ना समझो कि जेडे बादशाह ने बड़े आराम चली, किते ना किते उन्होंने भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जिंदगी का नाम है थोड़ी खुशी थोड़ा। आप जब तक जमीन पर हैं, हम जब तक जमीन पर हैं, हमें खुशी भी देखनी पड़ेगी और गमी भी देखनी पड़ेगी, हमें आसानियां भी देखनी पड़ती हैं और मुश्किलें भी। मगर ये नहीं है कि जब आसानियां तो हम बड़े खुश हैं, खुदावंद का शुक्र है। मगर जब मुश्किल आई तो बड़े हालात ही बड़े खराब ने, फिर भी कहें खुदावंद का शुक्र है। जो आप जुबान से बोलेंगे खुदा उस शुक्रगुजारी को पसंद करेगा और वो आपकी मुश्किलों को खत्म करके आसानियों में बदल देगा। मगर ये करना आपने कहां से है? जुबान से करना। मुश्किल हालात आ गए, कोई गल नहीं, शेखी नहीं मार है। ये जुबान जड़ी है शरारत ले इस्तेमाल। अगर मुश्किल आ गई है तो जुबान झूठ ले इस्तेमाल। मैंने बताया हननिया और सफीरा ने दौलत के लिए झूठ बोला, रुपए पैसे के लिए झूठ बोला, मगर एक ही वक्त में दोनों मियां बीवी इस जहान वाली से कूच करके चले गए। किस वजह से? कोई ना बड़ा गुनाह तो नहीं सीखा, मगर सिर्फ ये गुनाह किया था कि खुदा के सामने, खुदा के घर में, खुदा की कलीसिया में, खुदा के खातमों के सामने उन्होंने क्या बोला था? ते बोलिया भी किदे मारे? कईयां दा ते कारोबार ही इहदे ते चलदा है। जिन्नी देर झूठ ना बोलिए तो साडी गल है। कई डीलर होते हैं, कई प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, कई जॉब के ऊपर भी झूठ बोल जाते हैं, मगर वो यहाँ पर कहता है बोलने से पहले कुछ, क्योंकि तुम अक्सर बातों में क्या करते हो? खता करते हो। और जो नकम्मी बात तुम करोगे अदालत के दिन उसका क्या करना पड़ेगा? अब ये जो शेखी है ये शरारत का आलम है, ये जिस्म को दाग लगा देती है। आपके जो जानने वाले बहुत करीबी होते हैं ना, वो आपकी बातों पर तवज्जो नहीं देते। वो कहते हैं बंदा झूठा है, कि ताड़े बदन ते एक दाग लग गया कि की है? बोलो जरा, ये झूठा है, शेखीबाज है। फिर शरारत करने वाला तो भी दाग लग जाता है बॉडी पे। यार ये तो शरारती जी की गल के पीछे अक्सर खानदानों में कोई ना कोई एक होता ही है जिदा सारे खानदान को पता होंगे। तो कितने चार खानदानी लोग बैठे हो, वो कहते हैं यार तेन पता तो है वो झूठा है, तो वो गल पिछे, तो वो गल पिछे कितने लग गया? वो तो झूठा है, वो तो शरारती है, वो तो हसद करता है, वो तो शेखी मारता है, वो तो झूठ न लद्या हुआ है, वो तो दूसरे की बुराई करता है, वो तो एक दूजे के खिलाफ दूसरे खानदान को भड़का देता है, वो तो एडियां एडियां वड्डियां लड़ाइयां कर देता है। मगर किंज इथों कितों करता है? बोल के उसको उसके खिलाफ कर दिया, उसको उसके खिलाफ कर दिया। अब देखिएगा, मुझे नहीं पता आप में से कौन है, ये तानू खूब पता है, मैनू नहीं पता। ओहदे खिलाफ कर दिता, उन्हें फलाने टाइम ते ऐ कह दिता सी, तेनू उन्हें ऐ कह दिता, ते असीं भी वेंदे कोई नहीं, उन्हें कहा भी या नहीं, असीं भी कान नहीं वेंदे, असीं कुत्ते पीछे दौड़ पैने कि जेड़ी गल उन्हें गलत की असीं गल दे पीछे दौड़ पैने कि नहीं यार उन्हें कहा वे तो होए, ते जिन्हें नहीं कही वो बेचारा कहता रहता मैं नहीं आती। ते शरारती लोग इन्ना वड्डा फटा करा देंदे ने कि अपनी जुबान तो चंद लफ्ज बोल के खानदानों के अंदर ना इत्तेफाकी को डाल देते हैं। मगर यहाँ पर वो कहता है बोलने से पहले कुछ, वो कहता है ये शरारत का आलम है जो शेखी मारता है अपनी जुबान से। फिर वो कहते हैं ये जिस्म को दाग लगा देती है। फिर वो कहते हैं ये दुनिया के दायरे को आग लगा देती है। मगर है कि ठीक है? छोटी सी है, बहुत छोटी है। मैं अगर कहा सारे जुबान कटो तकरीबन सब दी एक जिन्नी होगी, मगर बोलन का अंदाज, बोलन का तरीका सारे का फर्क होगा।
کوئی اچھا بولنے والے ہوں گے, کئی اور لفظ بری طرح بولتے ہوں گے, لہجوں میں فرق ہے, آپ کے مزاج میں فرق ہے, مگر زبان سب کو خدا نے ہے ایک جیسی دی ہے, مگر آپ کی شخصیت میں فرق ہے. ہمیں اپنی شخصیات کو درست کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے بولنے سے پہلے کچھ, بولنے سے پہلے کچھ, یہ بھائی ذرا بولیں گے, بولنے سے پہلے کچھ, بولنے سے پہلے کچھ, حالے بھی اتنی آواز نہیں جتنے لوگ, بولنے سے پہلے کچھ, بولنے سے پہلے کچھ, اور سارے بولو, بولنے سے پہلے کچھ, بولنے سے پہلے کچھ. یہاں پر دیکھیں گے وہ کہتے ہیں دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. 5ویں آیت سے, زبان بھی ایک آگ ہے. زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور سارے دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے. کس سے جلتی ہے؟ کئیاں دے اندر ہی دوزخ ہے, دے مارتے ساڑھے جانا, گالا, برا بلا کہنا, بدواواں دینی, یہ کیا ہے؟ انہاں دے اندر ہی جہنم بنے ہوئے ہیں. تو انہاں دی زبان بھی جڑی ہے اگ دے نال بھری ہوئی ہے, اور جدے نال بول دے نے اگ ہی لا دیتے ہیں. یہ تے کہن دیا کہ نا چھوٹی جہی پر پورے جنگل نو کی لا دیندی. اس لیے اس کو کنٹرول کرنا بہت. وہ کہتے ہیں کوئی شیخی باز خدا کی بادشاہت میں داخل, کوئی جھوٹا خدا دی بادشاہت داخل, کوئی عیب جوئی کرنے والا خدا دی بادشاہت, کوئی گالی گلوچ کرنے والا خدا دی بادشاہت داخل نہیں ہو سکتا. کیونکہ وہ کہتا ہے شیخی جڑی ہے اس سخت حسد نو پیدا کر دیندی ہے, فرقے پا دیندی ہے, جدائیاں پا دیندی ہے. اے جدائیاں کتھوں پیندیاں نے؟ اے بولن نال پیندیاں نے. جدوں تسی بولن چ احتیاط نہیں کرتے, جو آیا منہ چو کٹ دیتا, اگلے دے اتے خنجر چلا دیتے, تیر چلا دیتے, تلوار چلا دیتی, کلیشن کوپ چلا کے زبان دے لفظاں دے نال اگلے نو زخمی کر کے پھر کہندے نے تے ساڈے کولوں ویسے ہی پیچھے پیچھے رہندے, اے تے ویسے ہی ساڈے کولوں دور جانا چاہتے ہیں. ایتھے وہ کہہ رہے ہیں کہ زبان دی شیخی دی وجہ تو پہلا کام کی ہوندا ہے, سخت حسد پیدا ہو جاتا ہے, رشتیاں دے اندر نفرت پیدا ہو جاندی ہے, اور جڑی شیخی مارن والا ہے او دی وجہ تو کی ہو جاتا ہے, تفرقہ پہ جاتا ہے, جدائی پہ جاندی ہے. پھر دوسرا کام کیا ہوتا ہے, اور جھوٹ بولتی رہتی ہے. اے شیخی باز جڑا ہے اے سخت عجیب کماں نو جڑا ہے او زمین تے کردا جی, اور کوئی مرد بھی ہو سکتا ہے, کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے. اس لیے بولنے سے پہلے کچھ, بولنے سے پہلے کچھ. اسی کے جو یعقوب کا خط ہے 3 باب کی 14ویں آیت ذرا پڑھوں گی آپ کے لیے. یہاں پر لکھا ہے لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ تو شیخی مارو اور نہ جھوٹ بولو. اگر 2 کام تسی چھڑ دو گے تے زمین تے اوتے تہاڈی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی, اور تہاڈی وجہ تو دوجیاں دی بھی زندگی کی ہو جائے گی. مگر کس بنا پر اگر تم زبان کو کیا کرو گے, بولنے سے پہلے کچھ, بولنے سے پہلے کچھ خیال کرو گے تو تم زمین پر رہتے ہوئے دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہر جاؤ گے. پہلا خط نکالیے گا ذرا یوحنا کا, اس کا 2 باب اس کی 16ویں آیت. یہاں پر دیکھیے گا بڑی زبردست وہ بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے زندگی کے اندر جو شیخی ہوتی ہے یہ خدا اس کو پسند نہیں کرتا, اور نہ شیخی باز جو شخص ہے وہ خدا کی طرف سے بولتا ہے. او جڑا شیخی مارن والا ہوندا ہے اپنے ہی لفظ ہوندے ہیں, یہاں شیطان کی طرفوں دے اندر آئے ہوندے. ذرا پڑھے اس کو. کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے. آگے دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں, لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا. شیخی باز کے دی طرفوں میں دنیا دار دا
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। कई डारी गए ने, चुको हाथ है, कितने हैं जो खुदा के बेटियां और बेटे हैं। लेकिन अगर आप शेखी बाज है तो आप दुनियादारी के हो सकते हैं मगर बाप के। यहाँ पर वो कहते हैं जो शेखी बाज है वो बाप की तरफ से, क्योंकि वो दुनिया की तरफ से, और दुनिया की चीजें क्या हो जाएंगी, ये सब खत्म हो जाएंगी, सब फना हो जाएंगी। मगर जो अपनी जुबान को कंट्रोल में रखेगा और अपने बदन को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा, वो जमीन पर रहते हुए खुदा का बंदा और खुदा की बंदी कहलाएगा। इसलिए कि बोलने से पहले कुछ, बोलने से पहले कुछ, ये जेड़ा शेखी बाज ने खुदा दी बादशाहत च जा, जेड़े झूठ बोलने वाले ने खुदा दी बादशाहत च जा। इसलिए अपने बोलन पे की करो, इख्तियार रखो, क्योंकि वो कहते हैं अगर तुम घोड़ों और खच्चरों के मुंह के अंदर लगाम देकर उनको कंट्रोल कर सकते हो, अगर तुम बड़े बड़े जहाजों को एक इंसान होने के नाते कंट्रोल कर सकते हो, तो जुबान को कंट्रोल करना कोई मुश्किल अगर आपसे नहीं होता तो कहें खुदावंद मेरी जुबान पर अपने निगाहबान फरिश्तों का पहरा बैठा, मुझे अपनी एक खुदावंद मोहब्बत से भर, मुझे अपनी पाकीज़गी से भर, मुझे अपनी हमदो सिताइश से भर, मुझे अपनी कलाम की सच्चाइयों से भर, ताकि मेरी जुबान से कोई खता ना हो और मैं कामलियत की जिंदगी को जमीन पर गुजार सकूं और जमीन पर तेरा सच्चा गवाह बनकर खुदा बधेरों तक खुशखबरी के पैगाम को लेके जा सकूं और मेरी शख्सी गवाही से भी दुनिया के ऊपर रहते हुए दूसरे लोग बरकत को रिसीव करें। आमीन।